10 years, the Usha Silai School program has been teaching women across India how to be self-reliant and independent. With the livelihood skills taught by the program, more than 8 lakh women from almost 16,000 villages across the country have learned how to fight prejudice, how to run businesses, how to earn and look after their own money, how to take care of their families' needs, how to be productive and participatory, and how to realize their own potential. Most importantly, they have learned how to be change makers. The Usha Silai School program has not only skilled women for them to secure a livelihood, but also instilled the confidence in them to act as change makers in society, inspiring and mentoring other women in their communities. Usha started the Silai School program way back in 2011. So it's been more than a decade of work that has gone into the field. These women actually feel more strengthened now, and because of the empowerment process, they are also able to voice their opinion against a lot of social issues, social evils. Gudiya, from the Mungadhi village of Sonbhadra in Uttar Pradesh, is one of those. Since childhood, Gudiya was keen on studying. Gudiya's life could have been crushed under the weight of official apathy and indifference and a cycle of hardships. But with a sheer determination and will, she has been able to turn her life around. She has submitted the mountain of enormous difficulties and written a beautiful, successful story for herself. पढ़ने के लिए बहुत रोता है। भैया लोग जाते हैं ना तो बहुत पछेड़ के जाते हैं, तो हमारा लड़का भी रहे तो मजा खेल बा दोनों भाई बहन, ठीक ना। वो एकदम परेशान तो कहाँ गए जो भाई हम ही घरे रह सस्ता बिता करके, तो भैया लोग से वो चली जाती है पढ़ने के लिए। First hurdle was crossed. Learning the alphabet in school wasn't at all difficult for Gudiya. The far bigger challenge was being a girl who wanted to study. पिताजी ने बोला कि अब मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ाने पाएंगे। तो हमारा मन था कि हम और आगे क्लास पढ़ते हैं। तो यहीं के एक हमारे टीचर, मतलब हमारे पट्टीदार जो घराने के भैया ही थे, तो उन्होंने बोला कि चाचा जी जब गुड़िया पढ़ने के लिए करी तो उसका नाम लिखवा दो, पैसा नहीं है बाद में दे देना। वहाँ तक 3 साल वहाँ पढ़े, 6, 7, 8 तक। वहाँ एक हमारी गुप्ता जात की तेली जात की सहेली थी, उन्होंने कहा कि आप तो 8 पास हो गए। तो पिताजी ने बोला कि तुम तो कह रही थी कि 8 तक पढ़ेंगे। हम बोले, वो बोल दी हमको कि नहीं फिर पढ़ना है, चलो आगे तक। तो हम लोग सोचे कि यहाँ करीब में स्कूल भी नहीं है, हम फिर जाएंगे कैसे, पैसा नहीं था कि बस से जाते, बस की साधन उस समय नहीं थी। Her insistence on studying won over the poor circumstances of the house. She started going to high school with her brothers. But she had an ailing mother who couldn't manage all the housework on her own. So Gudiya would get up in the morning, finish all the work in the house and then leave for school. फिर वहाँ से हाई स्कूल जब पास हो गए तो पिताजी बोले फिर अब तो पैसा नहीं है, अब हम कहाँ से पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम पढ़ो चाहे कुछ भी करो। There is poverty and illiteracy in the area where Gudiya lives. Gudiya passed high school with good marks, but there was no way forward. पढ़ने के बाद कोई काम नहीं था, तो मैं पहले अपने से प्राइवेट संस्था से सिलाई सीख करके अपना सिलाई घर पे मतलब सिल रही थी कपड़ा, अपना घर का कपड़ा, अपने गांव के अगल बगल का कपड़ा सिल रही थी। इसी अवसर पे वो बनवासी सेवा आश्रम में मतलब बुलाया गया, जैसे वो उषा शिल्पी के द्वारा। And this is how Gudiya came in touch with the Usha Silai Kendra. Gudiya proved to be talented in addition to being hardworking, and the Usha Silai Kendra provided just the solution to the challenges she had faced so far. तो वहाँ जाकर के 9 दिन की ट्रेनिंग हम लोग लिए। इसके बाद मशीन वहाँ से मिला उषा शिल्पी वाला, तो उससे हम लोग को बताया गया कि आप लोग यहाँ पर सिलिए और
खुद गांव को मतलब गांव में जा कर के अपने अगल बगल की जो भी लड़कियां हैं जो बहू नई नई आए हैं उन लोग को भी सिखाइएगा, और जैसे 2 पैसा आप कमाती हैं उसी तरह से उनको भी सिखा करके उसी तरह से वो भी अपना 2 पैसा के कमाएं, रोजी रोटी चलाएं, अपना भी सिलें और दूसरों का भी सिलें और सिखाएं भी। Having finished her training with the Usha Silai Kendra, Gudiya opened a tailoring center in her own village with their help. It was only a matter of time before the girls and the women from the village joined her center and started making clothes to cater to local demand. Thanks to the Usha Silai Kendra, it wasn't just Gudiya who was given livelihood training and a source of income, but also other women in her village. ये जो ऊषा इंटरनेशनल के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ, इसको ट्रेनिंग तक समाप्त नहीं किया। मतलब ये नहीं कि हमने ट्रेनिंग की और मशीन दे दी और अब उनको स्वावलंबी होना है। गांव में एक वातावरण बन रहा है कि ये कोई प्रोग्राम किसी कंपनी या उसका ना हो करके ये हमारा अपना प्रोग्राम है, एक हमारे गांव में लड़कियों के लिए इस तरह का केंद्र बनेगा। Gudiya may have started the journey alone, but she was now joined by many women and girls from the village. With the money coming in, Gudiya's dreams also began to grow. हम लोगों को फिर दोबारा वहाँ बुलाया गया कि आप लोग की ट्रेनिंग है 2 दिन की, यहाँ पर आप लोग आ जाइए। तो जब वहाँ गए तो उस अवसर पे हम लोगों से बातचीत हुई चुनाव की प्रक्रिया पे। तो हमने बोला ठीक है, अपने गांव में आकर के एक जो हमारी स्वयं सहायता है आजीविका मिशन से, उसमें हमारी 50 महिला जुड़ी हैं। इस गांव में 5 समूह बना है, 10-10-12 की ग्रुप बनती है, 50 महिला हैं। यहीं पर वो राम लखन भैया हमारे, उनके घर पे ग्राम संगठन का मीटिंग होती थी, तो वहीं पर मैं गई। तो वहाँ पे उन लोगों के बीच मैं यही बोली कि भाई हमें इस बार चुनाव में भाग ले रही हूँ, आप लोग क्या कह रही हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है बहन जी, आप खड़े हो जाइए, आपको हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं पर्चा भरी और फिर मैं सफल भी हो गई। Gudiya had now become the head of her village and was taking strong steps to fix every problem in her village that she had to face herself. Gudiya has assured the people of her area that she will fight till the end to bring facilities for higher education and facilities for water and health to the village. हमारे गांव में मुख्य समस्या ये है, पहले जैसे शिक्षा की व्यवस्था है। जो स्कूल हैं तो यहाँ कक्षा 5 तक ही स्कूल है, फिर बाकी आगे की क्लास के लिए हमको दूर जाना पड़ता है। फिर यहाँ पानी की जो समस्या है, जो कच्चे कुआं से पीते हैं, सर्दी खांसी जुकाम उस पानी को पीने से बहुत जल्दी पकड़ते हैं, यहाँ लोग बीमार भी होते हैं। तो हम सोचते हैं कि अपने योजना के द्वारा जो भी सुरक्षा के लिए आएगा उसको हम अपने गांव में ले आएंगे और करवाएंगे। Gudiya did not stop there. The triumph of her efforts and hard work reached the office of Chief Minister of Uttar Pradesh. She was appreciated and honored by Yogi Adityanath for her achievements. अब आपके पास जिम्मेदारी आई है ग्राम पंचायत को। अब प्रधानमंत्री जी ने भी और राज्य सरकार के द्वारा भी पर्याप्त पैसा दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को इतना पैसा जा रहा है कि इतना पैसा विधायकों को भी नहीं मिलता है। उस पैसे का सही सदुपयोग अगर आप लोग कर देंगे तो एक एक गली को आप अच्छी बना सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा होगा आप जैसी जागरूक महिलाएं जिन्होंने बनवासी कल्याण आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली है, फिर अपनी स्वयंसेवी संस्था को आगे बढ़ाया है और अब ग्राम प्रधान भी चुनी गई हैं। अगर इस कार्यक्रम पे ध्यान देंगी तो बहुत अच्छा आप अपने गाँव को बना सकती हैं और वो खासतौर पर बनवासी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। गुड़िया देवी जी, आपको और आपके परिवार के सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। आपके ग्राम प्रधान चुने जाने पर भी बहुत बधाई। Gudiya's journey of dreams began on foot and graduated to a cycle. Now Gudiya Devi is the first woman in her area to ride a scooty. She has become an inspiration for not only girls and women, but to the whole village. While in the other corner of India, Pulina Tuti from Chirkubera village in Jharkhand had to struggle to make a life of her own in the area worst affected by Naxals. संस्था में काम करने के बाद मैं उस संस्था में काम करना छोड़ दी, उसके बाद घर का ही काम करते थे। फिर तो आर्थिक सहयोग की तो ज़रूरत है ही,
घर का काम करने से हम लोग को खाने का तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन खाने का प्राप्त होने से कुछ नहीं होता है सर, तो रुपया की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए आर्थिक स्थिति हम लोग का कमज़ोर रहा, तो फिर बाद में हमको किसी के द्वारा पता चला कि उषा सिलाई स्कूल है जो रांची में संचालित है और समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसके बारे में हमको पता चला, फिर सही समय में हमको पता चला कि नहीं यही है समय, 7 दिन का प्रशिक्षण होने वाला है सिलाई कढ़ाई करने का। It was that training and the sewing machine they provided that made all the difference. And thanks to both, Polina's life isn't the same anymore. The biggest difference is the level of independence that the training has brought into Polina's life, especially when it comes to household expenses. पहले सर मैं अपने परिवार वालों के भरोसे ही थी, मिल तो रहा था लेकिन अपने ज़रूरत के अनुसार हम उसको खर्च नहीं कर पाते हैं। अभी सिलाई करके मेरा हाथ में आ रहा है, मतलब किसी से बिन मांगे। और हम लोग अपने गांव में महिला समूह का भी गठन किए हुए हैं, 2009 से चल रहा है। Today, Polina is an active participant in community matters too. With the aid of several self-help groups, Polina is working to save the forest and is active member of Jal Jeevan Jameen. She spends her time educating people about the importance of saving their tradition. हम लोग का क्षेत्र में जल, जंगल, जमीन का महत्व के बारे हम लोग बताते हैं एक दूसरे को, महिलाओं को बताते हैं कि हम लोग को जल का सही उपयोग किस तरह से करना है, पेयजल को किस तरह से हम लोग को रखना चाहिए, वो सब। फिर जंगल के बारे में भी हम लोग बताते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। जंगल से हम लोग लकड़ी लाते हैं तो हम लोग नीचे ही नहीं काट देते हैं, केवल डाल काटते हैं। Polina's ambitions have now taken wing and she wants to grow beyond the one machine training center she has. उषा हम लोग को ट्रेनिंग देने के बाद अभी हम लोग को मशीन देने के बाद अभी हम लोग मशीन से अपना रोजगार तो कर रहे हैं, तो हम लोग का हाथ में आ रहा है ना सर, आ रहा है तो हम लोग अपना परिवार का कुछ खर्च इससे कर पा रहे हैं। Bharti Kohade from the Sonegaon district in Betul, Madhya Pradesh has been an extrovert since childhood. After her marriage, she wanted to invest in a new business venture with her husband, but fate played its game. Their life came crashing down and the unexpected loss of a huge sum of money left them shattered. With the disappointments mounting, Bharti realized that the lost wealth wasn't going to come back and they needed to move forward. 2018 में एक क्लासिकल टीचर सरला जी यहीं पासी के गांव में हैं, उन्होंने ना मुझे कॉल किए, मेरा नंबर किसी से लेके मुझे कॉल किया कि बोले देखो मैं 2 दिन का सैटेलाइट स्कूल खोल रही हूँ बोले, और तुम इसमें जुड़ जाओ। और मैं गई वहाँ, तो मैंने वहाँ 2 दिन सैटेलाइट ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन की। और उसके बाद में 2019 जनवरी में ही मुझे 1 जनवरी को ही मुझे सर का कॉल आया, रमेश सर का न्यू सीड बचपन भोपाल से। मैं तो जानती भी नहीं थी रमेश सर को, तो उन्होंने बताया कि मैं न्यू सीड बचपन से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर बोले आप भारती आप ट्रेनिंग दोगे बोले सैटेलाइट। मैंने कहा जी सर। तो मैंने मात्र 2 दिन में मैंने पूरी लेडीज़ों का वो चयन किया और फिर मैंने 2 सैटेलाइट स्कूल खोले, 10 स्कूल यहाँ पर। Bharti's leadership qualities combined with great interpersonal skills opened up opportunities for her. मुझे फिर सर ने कहा कि भारती तुम इतनी अच्छी सिलाई करती हो तो तुम मार्केट में शॉप खोल लो।
मैंने कहा नहीं सर, कवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतनी कमाई होना चाहिए और मैं 1000 रुपये किराया कहाँ से दूँगी। तो बोले नहीं भाभी तुम कर सकती हो, बोले तुम देखो। तो बोले हस्बैंड से बात की, बोले आप जाओ, बोले आप शॉप ढूंढो, बोले और दुकान डालो। बोले मैं कहा मेरे पास मशीन वगैरह भी नहीं है। फिर मैंने कहा कि इन हस्बैंड से कहा कि एक डाल ही लेते ना, मैंने कहा कवर कर लेंगे, अगर उससे किराया नहीं निकलेगा तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जो कमा के लाता हूँ मैं उसमें से 1000 रुपये किराया दूंगा, लेकिन तुम दुकान डालो। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ शॉप डाली तो 2 ही मशीन थी मेरे पास में और एक स्टूडेंट भी आती थी उस समय। 6 लड़कियों का बैच हो गया था, फिर नया एडमिशन हुआ था, एक स्टूडेंट आती थी, फिर उसको लेके मैं मार्केट जाती थी शॉप पर। तो वहाँ पे ऐसा परिचय होने लगा, तो ऐसे करके मेरी थोड़ी धीरे धीरे पहचान बढ़ी। वहाँ पे भी लड़कियाँ आने लगी एडमिशन के लिए कि दीदी आप हमें सिलाई सिखाओगी क्या? मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर सिखाऊंगी, मैंने बोली। फिर ऐसे ही करके मुझे विश्वकर्मा समाज से कॉल आया कि बोले आपके यहाँ मैडम के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, बोले रिश्तेदारों से बोले। तो फिर ऐसे करके मैंने वहाँ पे बुटीक डाला। बुटीक के बाद में मुझे विश्वकर्मा समाज की अध्यक्ष भी बनाया गया। आमला ब्लॉक से मैं 40 गांव के अध्यक्ष हूँ मैं। तो अपने समाज वालों का जैसे पूरी लिस्ट वगैरह बनाना, पूरी जानकारी रखना, सब कुछ मैं मेंटेन करती हूँ 40 गांव का। From a student to a master trainer in the Usha Silai School, Bharti Kohade is now a well-recognized name in her community. For some women, she's a role model, while for others, she's a savior. मैं उषा से जुड़ने के बाद में जब बोर्ड लगा तो लोगों को ऐसा लगा कि ये मैडम दूर दूर जाती। जैसे मैं देवास जनसाहस गई थी मास्टर ट्रेनर्स के लिए, तो गांव में पता चला, महिलाओं को पता चला कि दीदी बाहर जाती है करके। तो मेरे पास में गांव की कुछ महिलाएं आई, 8-10 महिला आई मेरे पास में और बोलने लगी कि गांव में बहुत शराब बिक रही है और हम लोग के हस्बैंड बहुत शराब वगैरह पीते हैं, मारपीट करते हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं और बच्चों के एग्ज़ाम है, बोले बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसा करके ना फिर मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो बोले कि नहीं दीदी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप दूर दूर जाते हो, आपकी पहचान है। मैं बोली मेरी पहचान है तो मेरे अपने सर लोगों से है, मेरी ऐसे कहीं थोड़ी कुछ थाने वाने में कहीं पहचान में। बोली नहीं, बोली दीदी आप कर सकते हो। बोले तो मैंने कहा ठीक है। मैं हस्बैंड से पूछी कि मैं बोली महिला लोग सब आई है और मैंने कहा कैसे करूँ? हस्बैंड ने भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया कि 181 पे कॉल कर दो। बोले मैंने अपने मोबाइल से कॉल कर दिया और बस दूसरे ही दिन पूरी 2 गाड़ी भर के आ गए। फिर उन लोगों ने मेरे से बात की, बोले मैडम क्या दिक्कत है? मैंने कहा सर गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं और पापा घर में लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं मम्मी को, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए फिर उन लोग को लेकर गए थे। बहुत सी महिलाएं आती है, घर से पीड़ित रहती है, अपने पति से पीड़ित रहती है, बहुत परेशान रहती। कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि जो अपने पति के साथ में नहीं रहती, पति रखना नहीं चाहता, तो ऐसी महिलाएं आती है मेरे पास में। फिर हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, मैं समझाती हूँ उन लोग को कि आप ऐसा कीजिए, या तो फिर अपने पति के बारे में कंप्लेंट कीजिए, केस दर्ज कराइए, या तो फिर उनसे बोलिए कि आप मुझे रखिए। तो बोले वो नहीं रखना चाहते। तो मैं बोली आप कुछ भी कीजिए, अपने घर वालों को बोलिए, उनका सपोर्ट लीजिए। मैं बोली थोड़ा सा। तो ऐसे करके मैं महिलाओं को आपस में बिठाल के उनको समझाती भी हूँ, सामाजिक मुद्दों पे जैसे मैं बात करती हूँ। उषा सिलाई स्कूल से जुड़ी, उससे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए वो इस स्तर पे आके और अच्छा प्रोग्रेस करके अपना परिवार, घर और साथ में यहाँ की जो महिलाएं, बच्चियाँ हैं उनके साथ जुड़ के उनके साथ भी वो बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिली, उनका प्रोग्रेस अच्छी जगह अच्छे चल रहा है। उस हिसाब से बेटी का और इस बेटी को इस कार्य करने से हमें बहुत गर्व की बात है। मेरी पत्नी भारती कोहाड़े जब से उषा सिलाई स्कूल से जुड़ी है बहुत प्रोग्रेस करी है और बहुत सी महिलाओं को सिखा भी रही है और भी विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष है और बड़े दूर दूर से उसके पास में लोग बाग आते हैं और भी समस्या का हल करती है, जैसे दारू पकड़ने का भी काम करी है वो, और मुझे उस पर बहुत गर्व है। Guriya, Polina and Bharti are some of the women who have not only changed their lives but have also created a difference in the lives of other vulnerable women. They are the change makers.